बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पाकिस्तान की लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इदारे सामने आते हैं कि जहां ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहां नॉलेज शेयरिंग, जहां ट्रेनिंग की सलाह की जाती है। बहुत सारे ऐसे इदारे जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की बात करें और बिलखुसूस अगर ऐसे इदारों की बात करें कि जिसमें लर्निंग हब जिसको कहा जाए, जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का होम कहा जाए, जिसको इस सीखने की जगह और सीखने का घर कहा जाए, तो इसका एक नाम सामने आता है एंड दैट इज मैनेजमेंट हाउस। मैनेजमेंट हाउस का नाम तो यकीनन तमाम लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे ट्रेनर्स, जो ट्रेनर्स फैटर्निटी के लोग हैं, ट्रेनर से रिलेटेड जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनके मुख्तलिफ सेशंस आपने मैनेजमेंट हाउस में होते देखे होंगे। लेकिन आज इस इवॉल्व टॉक में आई वांटेड टू ब्रिंग द मैन हु वाज बिहाइंड इट, एक ऐसी शख्सियत जिसके जिक्र के साथ या जिसके जिक्र के बगैर पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और बिलखुसूस टॉप लीडरशिप और सीईओज का जिक्र पूरा नहीं होता। Ladies and gentlemen, when I was thinking, or when my team was thinking whom we should be bringing on, so then we decided to bring on a personality who is a house or a management house in himself, and he is a management house guru. So I would like to warmly welcome in the Evolve Talk Show today, Mr. Ijaz Ansar Saab. We'll be having him with us, and we'll be discussing about how training and development has been coming along with his input and his scenarios. Very importantly, जब आप learning and development की बात कर रहे हो, so there is lot many things which are not only about sessions which are happening, or if there are training programs going on, but a lot is to do with what the whole package is all about. Uh, Thoda sa introduction about Ijaz Ansar Sahab, and then we'll be off with the journey. So Ijaz Sahab is the founder and president of Management House, a Learning Edge, CEO Today magazine, and CEO Club Pakistan. And most importantly, he is also the author of the 100 performing CEOs and companies of Pakistan, and his our few of his creative initiatives. He's a leading inspirational speaker, corporate trainer, author, and management consultant. He holds master's degree in human resource management with specialization in OD and training. He's an MBA from IBAPU. He's also a scholar of MPhil leading to PhD. He also has over 20 years of professional experience in working with State Bank of Pakistan, the BAF, and National Bank of Pakistan. His areas of excellence are train the trainer, HR for line people, developing emotional intelligence, leadership की बात करें, and high impact presentation skills. As I said before as well, he brings with him a journey, an inspirational journey, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें collectively combine होती हैं with Ijaz Ansar Sahab coming along in this regard. And most importantly, when you look at his journey, or you look at his working which has been throughout, he brings so many things on the table which I think many of us would be looking at. Acha ji, before we will go on to the session, I think Ijaz Sahab is connecting again with us on the screen. As he connects, we'll take him on for the taking. मैं कोशिश कर रहा था कि we should try and have a management house introduction as well. As I said before, this platform provides immense opportunity for learning and, of course, bringing on a lot of people. So, Jas bhai, if you are connecting right now, meanwhile you जी connect back मुझे आपकी on the आवाज आ रही screen. है, लेकिन मुझे आपकी आवाज आ रही है, There's लेकिन पिक्चर तस्वीर नहीं आ रही है आपकी। मुझे थोड़ा सा कुछ मेरा ख्याल टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपको अच्छा, तस्वीर आ रही है मेरी? let me try and नहीं, I'm not able to look at you. So if you can disconnect and connect again, जो आपके पास लिंक मौजूद है, अगर आप उसे सिर्फ डिस्कनेक्ट करके एक दफा कनेक्ट अगेन कर लें। ओके, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, so meanwhile we'll have ये उन तमाम लोगों के लिए सेशन जो लर्निंग और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और आज आपने डिफरेंट चीजें सीखी होंगी, लेकिन आज मैंने एक स्पेशली रिक्वेस्ट की टू इजाज भाई टू कम अप विद अ टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट पावर टू चूज। आजकल बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक राइट नाउ वी हैव हिम बैक अगेन। सो अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वॉल टॉक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बड़ा
काम कर रहे हो। दानियल, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद यू माशाल्लाह। आप प्रीवियस आपकी जो कंपनी थी उसके साथ बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। एंड मैनेजमेंट हाउस की आपने इतनी खूबसूरत तारीफ की, तो उसके लिए वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय योर प्रीवियस कंपनी टू मैनेजमेंट हाउस, और जो स्पेशली तो उसके लिए अभी हम वो करते हैं आपको कि वी रियली ओ यू, कि आप लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट दिया। कमिंग टू द क्वेश्चन, मैनेजमेंट हाउस की और लीडर क्या क्या है ये, तो मैनेजमेंट हाउस के ऊपर मैं एक और जो अपना एक छोटा सा जुमला अच्छा बोलूंगा। एजाज भाई, मैं आपको कट करूंगा। मैं आपको कट करूंगा बहुत माजरत के साथ। हमारे पास जी एक जी डॉक्यूमेंट्री जो है वो मौजूद है मैनेजमेंट हाउस की। पहले अगर उसको थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाते हैं श्योर। और फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट हाउस इज, और स्पेशली वो लोग जो मैनेजमेंट हाउस को फॉलो करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। गुड, प्लीज प्लीज गो अहेड। House, we have created nurturing environment for learners to show best global leadership and management. जी जी एजाज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सच अ वंडरफुल नॉलेज हब मैनेजमेंट हाउस। मुझे थोड़ा सा जरूर तमाम सुनने वालों के लिए, हाउ डिड दिस आइडिया कम अप एंड यू आर माशाल्लाह रॉकिंग द वर्ल्ड। थोड़ा सा मैनेजमेंट हाउस के वाले से बताएं। यार, जो जो मैनेजमेंट हाउस है, बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा इसका, आपने जो वीडियो तो दिखा दिखा दी और देख ली है। ये एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनी है, लेकिन इसकी जो पीछे इसकी जो सोल है, स्पिरिट है, वो ये मैं बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट हाउस एक क्रेजी आइडिया है। बिजनेस की दुनिया में शायद ऐसा इस किस्म के बिजनेस मॉडल नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। 400 to 500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और आप इसके लिए सिंपल इसके ऊपर एक
पैसे कमाने के लिए करें, तो ये पहली बात तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये एक बेसिकली एक मेकिंग द डिफरेंस है, जिसको हम मैड बोलते हैं, MAD, मैड। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सोसाइटी के अंदर एक लोगों के अंदर लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है यार दानियाल, आपको ही पता है कि ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोफेशन पिछले 20 साल से मैं इसके अंदर हूँ, तो ये बेसिकली बैक सीट है कि जो भी बेस्ट एम्प्लॉय होता है, बेस्ट पर्सन होता है, उसको ट्रेनिंग में पार कर दिया जाता है। तो अदारों के, आप किसी भी अदारों के स्टाफ कॉलेजेस देख लें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लें, स्वाय पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा है या काकूल है, वहाँ बेस्ट ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाता है। जबकि जो बाकी जितने भी पाकिस्तान के ट्रेनिंग के अदारे हैं, चाहे वो पिम्स हो चाहे कोई भी हो, वहाँ जो सबसे थका हुआ बंदा होता है उसको ट्रेनिंग में प्रेस किया जाता है। तो मैं एक तरह की जंग थी, मेरी लड़ाई की थी कि यार लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, प्रोफेशन को लोग रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो बंदा बेरोजगार हो जाता है वो ट्रेनर बन जाता है या मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाता है, तो बदकिस्मती है। तो मैंने कहा था यार इसको सीरियसनेस जब तक नहीं आएगी, तो आज तक की डेट में जो मैनेजमेंट हाउस का जो कॉन्सेप्ट यही था कि आईने बेचता हूं अंधों के शहर में, यानी कि आज के दौर में आप कोई किताब की बात करें, इल्म की बात करें, लर्निंग की बात करें, वरना आपको पता है कि लोगों ने जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन था, मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दानियाल, वो पीसी होटल में, रॉयल पाम में, छोटे मोटे जो होटल्स हैं, होटल इज नॉट लर्निंग सेंटर। मैं लोगों से लड़ता रहा कि इसका पर्पसफुल लर्निंग सेंटर होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कोई बंदे को आगे नहीं आया। अल्लाह ने इजाज अंसार को तौफीक दिया और हमारी टीम को कि हमने लर्निंग सेंटर का ख्वाब देखा और इसको तकमील पहुंचाया। प्राइवेट सेक्टर में ये पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा दायरा है। आज तक की डेट में इसको 2 से 3 साल हो गए हैं इसकी हिस्ट्री को अभी कंप्लीट हुए। आज तक की डेट में हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को दानियाल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई है। जैसे लर्निंग फेस्टिवल होता है, जिस तरह हमारे इस तरह के डेली सैटरडे को, संडेज को, इवन वीकेंड पे ट्रेनिंग्स होती हैं, और हम कभी किसी से बल्कि चाय भी पिलाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का पहला दायरा है कि जो बच्चों को प्यार से बुलाता है, लोगों को कहता है आओ ट्रेनिंग भी करो और मुफ्त में चाय भी पी के जाओ। कई लोग तो यकीन ही नहीं करते, कई मजाक करते हैं, कहते हैं यार ये पागल आदमी है, यही कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। लोग तो यार मुझे कई दफा कहते हैं 500, 1000, 2000 की जहाज टिकट लगा दो। मैंने कहा नहीं यार, ये एक फीस बिल्ला जब कहा है तो अल्लाह से, तो पैसे तो हमारे दूसरे से आते हैं जो पेड ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ कोका कोला है, पेप्सी है, दूसरे बड़े बड़े इदारे हैं, PSO है, इन बड़े बड़े कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे मैनेजमेंट हाउस में, दे लव टू दे प्रेफर टू हैव ट्रेनिंग्स एट मैनेजमेंट हाउस। तो वो पैसे तो हम उधर से कमा लेते हैं। तो अब तक की डेट में हमने कोई 300 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ की इन हाउस ट्रेनिंग्स, अपना क्या कहते हैं, इंटरव्यूज किए हैं कॉफी विद सीईओ के साथ। 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कम से कम 100 के करीब कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने, जिसमें आपकी भी कंपनी थी, तो अपनी कंपनी ने उन्होंने अपनी इन हाउस ट्रेनिंग्स होटल की बजाय मैनेजमेंट हाउस में की हैं। तो दैट इज एक ऐसा एक जो इदारा था जो कि डर लग रहा था कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। यकीन जाने कोविड से पहले हमारा बैक टू बैक बुकिंग जा रही थी, लेकिन कोविड का एक चैलेंज आ गया बीच में। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये चैलेंज भी, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और उनके वापस लौटेंगी अदारों की, और हम कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं, तो हमने जो टेक्नोलॉजी को भी हमने अडॉप्ट किया और हम किए जा रहे हैं। ओवर टू यू। अच्छा, फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग एज वेल, जो तमाम लोग सुन भी रहे हैं, मैं क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो कुछ रियलिटीज हैं, कुछ हार्डकोर रियलिटीज हैं, कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जो काम करते हैं लेकिन दे माइट बी वर्किंग फ्रॉम वन रूम ऑफिस या मैनेजमेंट करना। अगर आप ट्रेनिंग के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर ऑल द ऑडियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड के मैनेजमेंट हाउस एक रियलिटी है, क्योंकि उस रियलिटी में मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। आई हैव बीन देयर, ट्रेनिंग सेशंस भी वहां कंडक्ट किए हैं, देखा भी है। व्हेन यू गो देयर यू रियलाइज कि दिस इज हाउ व्हाट लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज एज कंपेयर्ड टू फ्यू ऑफ व्हाट ट्रेनिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सिनेरियोज। ये एक बहुत अहम बात थी। दैट इज व्हाई एजाज भाई की आज जो बातें होंगी वो ना सिर्फ हमारी इस हवाले से कि मैनेजमेंट हाउस को सीखें, बट एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे रन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैंने आज आपको तकलीफ दी एक टॉपिक देकर एजाज भाई, एंड हमारी डिस्कशन भी हुई, दैट वाज पावर टू चूज। जब मैंने आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया तो आप बहुत सारे इदारों में ट्रेनिंग्स देते हैं, यू हैव बीन कनेक्टेड विद स्टेट बैंक फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। पावर टू चूज का जो टॉपिक था वो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट अपॉन दिस। फिर मैं साथ साथ इंटरेक्टिव क्वेश्चंस भी लेता रहूंगा। हाउ डू यू सी पावर टू चूज
ये किस तरह की क्वालिटी है और ये कैसे एक्वायर की जाए? अगेन दानियल, बड़ा अच्छा बोला आपने, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और हटके या डिफरेंट है, क्योंकि जो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो इस वक्त पूरे एक गुफ्तगू चल रही है, तो कसम से सर में दर्द शुरू हो जाती है। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, टेलीविजन देखो, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और कोई 1000 से ज्यादा वेबिनार्स हो रहे हैं इस वक्त भी, हर बंदा अपना अपना ऐसे ऐसे बोलते जा रहे हैं, तो इतना कंफ्यूजन आ जाता है। और इसके साथ ही जो 2 तरह के डिप्रेशन आ चुके हैं, सीरियसली, चाय बनाना बेटे, तो 2 तरह के डिप्रेशन आ चुके हैं। एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड आ चुके हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। अब ये पावर टू चूज जो है ना, हमें इन दोनों डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करेगा जी। मिसाल के तौर पे ये चॉइस मेरे पास है, क्योंकि एक तरफ स्टिमुलस है, एक तरफ आपका रिस्पॉन्स है बीच में, और एक आप रिजल्ट्स हैं जिंदगी में। इस सिचुएशन में जो कोविड की आई हुई है, हर बंदे को ये 3 की वर्ड जो ना सीखने हैं। नंबर 1 स्टिमुलस, इस वक्त सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसिस क्या है, और सेकंड उस सर्कमस्टांसिस में रिस्पांस क्या है। आपको पता है कि रिस्पांसिस पे और सर्कमस्टांसिस पे ना मेरा ना आपका कंट्रोल नहीं है कि कोविड ने क्या करना है, कोविड ने क्या हालात पैदा कर दिए हैं, चाहे वो इकोनॉमी को तबाह किया है, या लोगों के ज़हनों को, एंजाइटी को, फियर्स एंड डाल दिया उनके अंदर। तो अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है सर्कमस्टांसिस, लेकिन मेरे इख्तियार में रिस्पांस है। तो अगर पावर टू चूज का टॉपिक ये है कि आपके पास जो रिस्पांस है, अगर आपने उस रिस्पांस को कंट्रोल किया, यानी कि अपने इख्तियार में रखा, तो आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोच सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेनिंग बंद नहीं हुई, ट्रेनिंग का लॉकडाउन नहीं हुआ, इमेजिनेशन का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का लॉकडाउन नहीं हुआ, क्रिएटिविटी का लॉकडाउन नहीं हुआ, पॉजिटिव थिंकिंग का लॉकडाउन नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये वाला जो ना रिस्पॉन्स आपने करना है, रिएक्ट नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली दानियाल, आज के सेशन में मैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा सुनने वालों, देखने वालों को, कि हमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो चीज पे कंट्रोल है वो हमारे रिस्पॉन्स है, क्योंकि इंसान अपनी अपनी चॉइसेस में फ्री है। खुदा ने उसको दिया है कि वो रोजा रखे, रोजा ना रखे, ये खुदा ने उसको चॉइस दिया है। एक एनिमल को, आप कुत्ते को बोलेंगे या तुम रोजा रख लो, तो वो फास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जिबिलतें हैं, उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसकी बेस पे उसका सारा बिहेवियर डिटरमिन होता है। इंसानों का बिहेवियर जो होता है वो जिबिलतों के साथ साथ उसकी अपनी चॉइस के साथ होता है। मेरी मर्जी है कि मैं जो है रोजा रखूं या ना रखूं, तो मेरी मर्जी है मैं सच बोलूं या ना बोलूं। लेकिन कोई एनिमल किंगडम में किसी को अलाउ नहीं है, जो भी उनके अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है, जैसे कि कोरोना इटसेल्फ है, वो कहते हैं वो तो जानदार भी नहीं है, तो वो भी एक नेचर के असूलों के मुताबिक वर्क कर रहा है। इंसान को ये पावर दी गई है कि वो रिस्पॉन्स करे एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में, या वो रिएक्ट करे। जो रिस्पॉन्स करेगा या रिएक्ट करेगा, उसके मुताबिक उसका रिजल्ट आएगा। तो ये काज एंड इफेक्ट से बनी हुई कायनात है। मिसाल के तौर पे जो रिस्पॉन्स है, अगर आप नेगेटिव देते हैं एक सर्कमस्टांसिस नेगेटिव में, तो क्या होगा, यू विल बी स्ट्रांगली मेंटल, यानी कि आपका पक्की बात है कि आपको साइको पेशेंट बनना ही बनना है, आपके मूड स्विंग्स आने ही आने हैं, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होना ही होना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप समझते हैं स्ट्रांगली मेंटल बनने की बजाय मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, आई रिपीट, मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, उस सूरत में क्या होगा कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो क्या होगा कि सिचुएशन वही है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होगा, यानी कि आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर जाएंगे, आपको एक नेगेटिव में भी पॉजिटिव नजर आएगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल सय्यतुल हसना, इसका मतलब ये है कि जब मेरे बंदों के साथ अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो उसके बदले में वो पॉजिटिव करते हैं। और ये हमारे मुसलमान और आप हमारा बिलीव है कि अल उसरी युसरा, यानी कि हर तकलीफ के बाद एक आसानी भी आती है। तो हमें जो ऑप्टिमिज्म एज अ रिस्पॉन्स चूज करना है, ये चूज है ये मेरी चॉइस है। घरों में इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त जो इवन के हॉस्पिटल्स में मेरी जो इंटरेक्शन हुई है, जितने भी पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोरोना के पेशेंट कम आ रहे हैं, हमारे पास डिप्रेशन के 70% से 75% पेशेंट सिर्फ डिप्रेशन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जो ये टॉपिक आज हमने रखा कि खुदा के लिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को मेंटेन करें, अपने मूड स्विंग से बचें। इस वक्त घरों में बैठे हुए लोगों को सबसे बड़े 2 चैलेंज है, एक मूड स्विंग्स और स्लीप। लोगों को नींद नहीं आती, आधी रात तक लोग पहले भी जागते थे रमजान में, अब तो किसी और वजह से, अब तो एंजाइटी की वजह से जाग रहे हैं कि भाई कल क्या बनेगा, दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या होगा, हर बंदे को नहीं पता कल क्या होगा। तो भाई 2 चीजें हैं, अगर मैं चॉइसेस की बात करूं, पावर टू चूज के जो डिप्रेशन का जो इलाज है वो फेथ है,
और जो फाइनेंशियल डिप्रेशन का इलाज है वो आपकी लिक्विडिटी, आपका कैश है। तो जिसकी जेब में कहते हैं कि जब डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन आता है, तो कैश इज किंग। और जब 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 साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आता है तो फेथ इज किंग। तो इस वक्त जिसकी जेब में दो चीजें हैं, फेथ और दूसरी जेब में कैश है, तो समझ लें कि वो इस स्टॉर्म, इस तूफान से बड़े आराम से अपनी कश्ती लेकर निकल जाएगा। बाकी उसके से भावर में फंस जाएंगे और रोना पीटना हो जाएगा। रोने पीटने से तकदीर और जिंदगी नहीं बदलती। दैट इज अ चॉइस। ओवर टू यू। that's wonderful। और मैं इस बात को अगर रिलेट भी करूं, लॉकडाउन में मिजाज भाई, आपके सीईओ क्लब के रेफरेंस से भी, मैनेजमेंट हाउस के रेफरेंस से भी बड़े जबरदस्त किस्म के सेशंस भी हो रहे हैं। बहुत अहम ये बात जरूर है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहा जाए। आपको जब मैंने सुना है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड यू आर टॉकिंग नेगेटिविटी, नेगेटिव मैंने बात आज तक आपसे नहीं सुनी है। ऑलवेज टॉक, मैसेज भी आपका पॉजिटिविटी होती है। मुझे ये बताएं, इन हालात में एंजाइटी तो है, लेकिन एंजाइटी को किल करने का सबसे इजी टिप मेथड क्या है? यानी कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इवन इन दिस टफेस्ट ऑफ टाइम्स। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं दो तरह से दूंगा। एक वासव अली वासव, हमारे गुरु उस्ताद मेंटोर हैं, वो कहते होते हैं कि हासिल और ख्वाहिश के दरमियानी फासले का नाम स्ट्रेस और एंजाइटी है। आई रिपीट, हासिल और ख्वाहिश। कहते हैं कि ये हासिल को ज्यादा कर लो या ख्वाहिश को कम कर लो। जहाँ जो हासिल हो गया है उसको पसंद कर लो, या जो पसंद है उसे हासिल कर लो। आई रिपीट, जो हासिल है उसको पसंद कर लो। यानी कि जो आपको अल्लाह ने जो भी चीजें दी हैं, जो भी जिंदगी में सबसे कीमती चीज जो एंजाइटी डिप्रेशन की, ये कहते हैं कि दो, एक तेरी मर्जी है, एक अल्लाह की मर्जी है। कहते हैं कि बंदे की मर्जी और अल्लाह की मर्जी के दरमियानी फासले का नाम स्ट्रेस है और एंजाइटी है। अगर बंदे की मर्जी और अल्लाह की मर्जी में अगर फर्क खत्म हो जाए, स्पेस खत्म हो जाए, तो इंसान को सुकून मिलता है। और इस वक्त कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जो इस वक्त किसी इंसान की अचीवमेंट है वो दौलत, पैसे, घर, कोठी, मकान, क्योंकि ये तो मिट्टी हो गए हैं, इसकी अब क्या वैल्यू है? इस वक्त तो सबसे बड़ी वैल्यू सेहत है जिंदगी की, और सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिविटी है। तो जिंदगी में सबसे जो बड़ी चीज है वो पीस ऑफ माइंड है। अगर आपने अल्लाह के और अपनी मर्जी के फासले को कम कर लिया तो क्या मिलेगा? पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बिल्कुल। और अगर ये गैप बढ़ गया, अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी में फासला बढ़ गया, तो पीसेस ऑफ माइंड मिलेगा। क्या बोला यार? ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चॉइस है। पावर टू चूज का टॉपिक है हमारा, कि ये मेरी चॉइस है कि मैंने पीस ऑफ माइंड लेना है या पीसेस ऑफ माइंड लेना है। ये डिपेंड करता है कि मेरी चॉइस क्या है। तो मोस्टली बंदे जो पीसेस ऑफ माइंड में हैं, समझ लें कि उनका भी गैप हासिल और पसंद का बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, एक बड़ा प्यारा बात है, कहते हैं जी कि हमारा प्रॉब्लम है जो हमें हासिल होता है, हासिल की नाकदरी और ला हासिल की ख्वाहिश। आई रिपीट, ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि हासिल की नाकदरी और जो ला हासिल है, जो हासिल नहीं हुआ, उसकी हसरत। ये इंसान को एंग्जाइटी देती है। कहते हैं कि जो माजी में रहते हैं, अगर यू लिव इन द पास्ट, ठीक है, तो कुरान पाक की बड़ी प्यारी आयत भी है, इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं ना जिनको खौफ होता है ना हुज़्न होता है। खौफ कहते हैं आपका जो फ्यूचर होता है, जो फियर होता है वो मुस्तकबिल का होता है, जो हुज़्न होता है वो सैडनेस कहते हैं, वो माजी का होता है। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, ना वो माजी में रहते हैं ना मुस्तकबिल में रहते हैं, वो हाल में रहते हैं, इनके प्रेजेंट में रहते हैं। इसलिए प्रेजेंट को गिफ्ट बोलते हैं। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। तो जो बंदा हाल में रहता है, कहते हैं कि पागल ये मत देख जिंदगी में कितने पल हैं, ये देख एक पल में कितनी जिंदगी है। अपने एक लम्हे की जो जिंदगी मिली है इसको सेलिब्रेट करें, सांसें लें। दानियाल, आपको पता है कि कौन से किसी हॉस्पिटल में पता चला कि वहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बंदे को वेंटिलेटर पे रखा गया, जो कोरोना का पेशेंट था, रिकवर हो गया बाद में। और वो उसने पूछा गया कि डॉक्टर ने जब जाने लगा तो उसको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बिल दिया। उसने कहा जी मैं 2 दिन ठहरा था तो 2 लाख रुपया बिल बन गया उसका, वेंटिलेटर का, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वो रोना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने समझा कि शायद इसके पास पैसे नहीं है, ये जो कोरोना के ये जो वेंटिलेटर पे ये 2 दिन रह के गया है, तो इसके पास पैसे नहीं है। तो यकीन जानोगे अपना मजे की बात है कि उसने रोते रोते कहा नहीं, पैसों का इशू नहीं है, मैं पैसे पे कर सकता हूँ। लेकिन असल इशू ये है कि मैं जो इतने सालों से 70 साल का मैं हो गया हूँ, मैं रोज ऑक्सीजन ताज़ा लेता हूँ एक कायनात से, तो उसका मैंने जो मुझे सुबह दोपहर शाम मुफ्त वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है, उसको तो उसने कभी पैसे नहीं मांगे, ना ही मैंने उसको कभी पैसे देने की कोशिश किया। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं आया हूँ तो मेरी चीखें निकल गई हैं।
तो खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें कि जो जिंदगी में जो आपके पास है, अगर उसका, इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो आपका सवाल का कंक्लूजन ये है कि एंग्जाइटी का जो सबसे बड़ा इलाज आज तक डिस्कवर हुआ है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब तक आप शुक्रगुजार नहीं बनते, जिंदगी में जो नेमतें अल्लाह ने आपको जो भी दिया है, सांसें भी दी हैं, ये भी उसी की नेमत है, आंखें दी हैं। मैं अब एक मूवी देख रहा था डेफ एंड डम की, कि जिसके कान और जुबान नहीं है, यकीन जाने तो मैं सोच रहा कि जिंदगी में अगर इसकी मैं कीमत लगाऊं, जुबान की और कान की और अपनी आंखों की, तो मेरे तो करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां जायदाद, ये तो जीरो हो जाए इसके आगे। तो इसका शुक्र अदा कर लें हम कि मैं देख सकता हूँ यार, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। कभी इसका शुक्र अदा किया है हमने? थैंक यू। ओवर टू यू। वंडरफुल। अच्छा, मेरा एक बड़ा अहम क्वेश्चन है नेक्स्ट, which on which you can give input, and that is art of saying no. अच्छा, ये इजाज भाई जरा इस पे थोड़े से रोशनी डालें। आपने पावर टू चूज तो कहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नो कहें, नो जिंदगी में कहें, नो बॉस को कहें, नो अपने डिसिप्लिन रहते हुए कहें। जरा ये डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जाए, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। देखिए, ये पता क्या बात है, लाइफ जो है ना, ये एक लाइन आप मार्क कर लें अपना दानियाल, के जो ना जिंदगी जो ना, वो लाइफ इज ऑल अबाउट आवर हैबिट्स और आवर डिसिप्लिन। क्या है जी कि हमारी लाइफ सारी कंडीशनिंग का नाम है, और हैबिट्स क्या होती हैं? हमारी आदतें जो होती हैं, हमारी कंडीशनिंग है और हमारी जिंदगी बनाती हैं। हम अपनी जात से नो शुरू करें, बाहर के लोगों को नो कहना तो बाहर की बात है कि हाउ टू से नो, हाउ टू से यस। सबसे पहले जो हमारी अपनी ये लॉकडाउन में हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम मिला है, मुझे अपने अंदर झांकने का टाइम मिला है, आपको अपने अंदर झांकने का टाइम मिला है। अगर हम अपने अंदर झांकें, अपने अंदर एक अंदर अपने अंदर देखें, तो देखेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी सोच, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स जो कि डिजायरेबल नहीं है, क्या हमने उनको नो कहा है? तक हमें अपने आप को यस और नो सीखना है करना, क्योंकि ये लफ्ज जो यस और नो में बड़ी ताकत है। और जो अगर आपका जो नो का लफ्ज है, अगर आप उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मैं जब भी किसी से बिजनेस कॉल करता हूं, तो मेरे कुछ स्टाफ का बंदा कहता है, सर उसने मीटिंग के लिए नो कह दिया, सर उसने बिजनेस के लिए नो कह दिया, उसने कहा जी नो। तो मैं उसे नो का रीडिफाइन कर देता हूँ, अरे भाई नो का मतलब नो नहीं होता, नॉट ओवर होता है। तो जिंदगी में नो को नो नहीं लेना। और मैंने अपनी टीम को सिखाया है, आप कभी ऑफिस आए मेरे देखें, हमारे पास बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नो का लफ्ज डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारे पास दो ही लफ्ज हैं, या यस है या पे यस है, तो दो ही लफ्ज हैं, यस या यस। तीसरा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जब आप कोई ऐसी कमिटमेंट करें अंडर प्रेशर, आप यस कह देते हैं जो आपको नो कहना चाहिए था, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये तीसरा कॉन्टेक्स्ट है। किसी कॉन्टेक्स्ट में आपने यस बोलना है और किसी कॉन्टेक्स्ट में आपने टू लर्न टू नो कहना है। नो कहने से आपकी टाइम बचता है, आपका दिमाग बचता है, आपकी, जैसे मेरे पास रोज की कम से कम 10-20-30 लोग आते हैं जी, हमें काउंसलिंग करें, हमें जी नौकरी के लिए कुछ करके जाएं। मैं उस बंदे का प्रोफाइल देखता हूँ, मैं इसकी सीरियसनेस देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार 10 बंदे मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने 10 बंदों की कोचिंग की, काउंसलिंग की, लेकिन उनके साथ मैंने कुछ सीरियस कमिटमेंट नहीं लिया, और क्या हुआ कि बाद में वो भाग गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मेरा भी वक्त ज़ाया किया और उन्होंने अपना भी वक्त ज़ाया किया। तो मैंने देखा कि मैं बड़ा फिर फिल्टर लगाता हूँ कि यार मैं उस बंदे के साथ काउंसलिंग करूं जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, जो मैं पैसे नहीं लेता, ताकि जो बंदा वाकई सीरियस है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो वाकई कर सकता है, अदरवाइज फिर मैं स्ट्रेट अवे नो कह देता हूँ। थैंक यू। तीनों कॉन्टेक्ट हो गया। राइट, वंडरफुल। आर्ट ऑफ सेइंग नो आई थिंक इज रीडिफाइंड। अच्छा, मेरा ये बड़ा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था और मैंने आपसे जरूर करना था। एजाज भाई, आप थोड़ा सा सबसे पहले, बिफोर आई गो इनटू दिस क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सीईओ क्लब के हवाले से बताएं। आई हैव बीन टू मेनी इवेंट्स ऑफ सीईओ क्लब। मैं तो इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि पाकिस्तान के टॉप सीईओज को इकट्ठा किया आपने, उनके साथ सीखने का मौका मिला। और मेरा ये ख्याल है कि किताबें पढ़ने की बजाय या किसी नॉलेज थ्योरीज में जाने की बजाय अगर आप सक्सेस स्टोरीज को पढ़ें तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग सीईओ क्लब? दूसरी बात, सीईओ क्लब टॉप 100 सीईओज ऑफ पाकिस्तान की किताब ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, बल्कि उसके बाद लंदन में माशाल्लाह सीईओ क्लब की किताब की लॉन्चिंग हुई। तो मतलब पूरी दुनिया पे आपने पाकिस्तान के टॉप सीईओज और उनकी वर्किंग दिखाया। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपका फेवरेट सीईओ कौन सा था? ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन।
दानियाल, जो सबसे पहली बात हो कि सीईओ को मैंने रीडिफाइन किया। सीईओ डज नॉट स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दे आर चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर। पहले तो सीईओ को मैंने रीडिफाइन किया। और दूसरी बात यह है कि मेरा फेवरेट सीईओ, यार हर वो बंदा सीईओ मेरे जो जो जिसने अपनी सिल्वर स्पून लिया, जो उसने स्क्रैच से शुरू किया, हर वो सीईओ जिसने जिंदगी में स्ट्रगल की, भेंटी खाई, मार खाई और बगैर किसी उंगली पकड़े अपनी मकाम हासिल किया, वो मेरा आइडियल सीईओ है। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, एक का नाम लूंगा तो एक गलती हो जाएगी, तो नाम एक एक नहीं ले सकता हर वो बंदा। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि जो सीईओज हैं वो उनके अंदर मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ मैंने कॉमन फैक्टर्स हैं जिन जो एक आम सीईओ को दूसरे सीईओ से बड़ा करती हैं, बड़ा बनाती हैं। वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक रिसर्च किया, मैंने होली प्रॉफिट पीस भी पॉन हिम उनकी भी लीडरशिप एबिलिटीज लिखी फॉर सीईओ के, उनको सीख सकें। कुरान पाक में जो 12 आयतें हैं जो सीईओज या लीडरशिप के ऊपर, वो मैंने इसका रेफरेंस दिया। और फिर लोकल जो इंडिजिनस कंटेंट है सीईओज का, वो मैंने लिखा अंडर सीईओज में। तो पहली जो नंबर 1 जो एबिलिटी है किसी सीईओ को बड़ा सीईओ बनाती है। और फिर उसके बाद इनको ब्रांड किया, क्योंकि पाकिस्तान में सीईओज की इमेज बिल्डिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, क्योंकि ये वो हीरोज है, ये रियली अनसंग हीरोज हैं जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। गवर्नमेंट तो आपको पता है कुछ नहीं करती, सिवाय उनके तो आपस में लड़ाइयां और बयानबाजियां और एक पॉलिटिकल, क्योंकि वो लीड एक क्लब है पाकिस्तान पॉलिटिक्स का। असल मुल्क जो है ना वो सीईओज एंटरप्रेन्योर चलाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और आगे फ्यूचर में भी उन्होंने लेके जाना है। अब वो उनकी कुछ 4-5 जो मेरी रिसर्च हुई, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एक हम्बल सा एक जिसको कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है कि 1000 के अराउंड मैंने सीईओज के इंटरव्यूज किए, उनकी किताबों में इनके प्रोफाइल्स लिखे। आज तक नहीं मेरे डेट में मेरा ख्याल को याद पड़ता, और इसमें 10-8 साल लगे, एक दिन में नहीं हुआ कि 1000 सीईओज उनको मिलना। मियां मंशा, बाबर अली, ये बड़े बड़े हुसैन दाऊद, कोई ऐसे बड़े बड़े नाम लेते जाएं आप थक जाएंगे। तो इतनी बड़ा तादाद है और इतना उनसे लीडरशिप, उनकी मैनेजमेंट, उनकी चीजें सीखी। तो कुछ मैंने कॉमन फैक्टर्स 5-6 फैक्टर्स हैं वो डिस्कवर किए। तो सबसे पहला फैक्टर है जो मैंने डिस्कवर किया, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सीईओ के हवाले से आता है, वो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है और उनकी वो बाउंस बैंक एबिलिटी है। यानी कि आप गौर से सुने कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हैं बिजनेस में। कहाँ कभी बिजली का बिल, कभी रेंटल इश्यूज, कभी गवर्नमेंट के महकमे, कभी एफबीआर, कभी लेबर डिपार्टमेंट। तो वो बेचारा जो छोटा मोटा तो कंपनी बना ही पाता है, तो बेचारा तो उसके तो महकमे उसको उड़ा के रख देते हैं। तो वो ऐसे और बिजली का 18 घंटे, आप तो इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं, एनर्जी क्राइसिस। तो ऐसे दुनिया में कभी देखा 18 घंटे बत्ती नहीं आती? कभी देखा वहां लेबर डिपार्टमेंट एफबीआर वाले आके दफ्तर में बैठ जाए? कभी देखा कि वहां पे आपका बत्ती काट के चला जाए? कभी देखा कि सुई गैस का कनेक्शन कट जाए? कभी, मतलब ये पाकिस्तान में ही होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई काम करता है तो सबसे पहली एबिलिटी कि पाकिस्तानी सीईओज हैव द बाउंस बैक एबिलिटी। आई रिपीट कि पाकिस्तानियों में जो बाउंस बैक जो एबिलिटी है सीईओज के अंदर, कि इतनी फेंटियां खाने के बावजूद भी वो खड़े हो जाते हैं, और वो परसिस्टेंस है और उनकी वो कंसिस्टेंस है, वो उनकी परसिवियरेंस है। तो ये नंबर 1 एबिलिटी है जो किसी सीईओ को पाकिस्तान में आम लोगों से बड़ा करती है। आम इंसानों से वो भेंटी खा के भी गिरते नहीं है। सेकंड जो पार्ट है उनका जो अनफ्लिंचिंग फेथ है, उनका यकीन होता है अपनी खुदा की जात पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी टीम पे, अपने लोगों पे, अपने विजन पे। तो ये सेकंड एबिलिटी होती है फेथ। पहली मैंने बता दी परसिस्टेंस और बाउंस बैक एबिलिटी, और गिव अप नहीं करते। और दूसरी बताई मैंने आपको एबिलिटी जो सीईओज के अंदर होती है। और तीसरी चीज जो पाकिस्तानी सीईओज के अंदर जो बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल करती है, वो उनकी कंपोजर है, यानी कि कंपोस्ट होते हैं। जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए, जितना मर्जी एंग्जाइटी आ जाए, जेब में पैसे हैं, जेब में पैसे नहीं है, तो उसके बावजूद उनकी वो जो एक एबिलिटी है कंपोजर की और करेज की, वो नहीं खत्म होती। और चौथी बात जो एक एबिलिटी जो सीईओज को डिफरेंशिएट करती है आम लोगों से, वो उनकी एबिलिटी है उनकी हाई सेल्फ स्टीम। ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कि जिनकी एबिलिटी हाई सेल्फ स्टीम नहीं होती, वो कहीं ना किसी जगह मार खा जाते हैं, फेंटी खा जाते हैं। और पांचवी एबिलिटी कि उनके पास एक वो क्या होते हैं कि वो एक एटर्नल पॉजिटिव, जो उसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकर होते हैं। वो उनको नेगेटिव बात डाइजेस्ट ही नहीं होती। जितने भी नेगेटिविटी आ जाए वो कभी नेगेटिव नहीं होते। पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग सीईओज हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये 5-6 मैंने आपके साथ एबिलिटीज शेयर की हैं,
जो उनकी कॉम्पिटेंस हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर्स हैं जो पाकिस्तानियों को। और एक आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें बहुत सारी बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तानी यूजुअली जज्बाती लोग हैं, इमोशनल हैं, वी आर सेंटिमेंटल पीपल बाय ब्लड बाय डीएनए। लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जो इस क्राउड से डिफरेंशिएट होते हैं, उनके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी होती है। इनके वो अपने फैसले जज्बाती से नहीं लेते, तो वो अपने फैसले बकायदा कैलकुलेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने बिजनेस प्लान बनाते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस देखते हैं, और बड़ा मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स। अनपढ़ भी मैंने जो बहुत बड़ा ब्रांड वाइटल बना, मैं तो उसके सीईओ के पास बैठा था, बहुत नॉर्मल बंदा, पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को उन्होंने जनाब टफ टाइम दिया। मैंने उनके पास बैठा, उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूछा, उन्होंने 3310, आज से कोई 5 साल पुरानी बात है, एक 3310 मोबाइल दिखाया दानियाल, कहता ये मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। मैं क्या वो कैसे? कहता जी मेरे 6 के 7 रीजन है, और हर रीजन का शाम को 6 बजे ना सेल्स आ जाती है, और मैं सातों को छेटों को कैलकुलेट करता हूँ, मुझे पता मेरी कंपनी ने आज ये सेल्स की है। यार ये देखो कितना 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 इंटेलिजेंट बंदा है कि उसके पास कोई एक्सेल नहीं, कोई हाई फाई किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, कोई ओरेकल और सैप के उसने नहीं लगाए हुए, सिंपल 3310 के ऊपर इतनी बड़ी 10,000 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को वो डेली देखता है, एक एक मिनट वो चेक कर रहा होता है यार, करता मतलब 5 साल पुरानी गैजेट। तो ये पाकिस्तान के जो लोग होते हैं सीईओ, वो मैथमेटिक्स में बड़े गुड होते हैं अपनी बिजनेस में। ये अकील करीम डैडी आप नाम देखते हो, सुना होगा, AKD, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। मैं उसके पास बैठा तो उसके पास एक कागज और कच्ची पेंसिल थी, तो मैंने कहा अकील भाई ये क्या है? और कहता है जाज भाई मेरे पास कम से कम 20 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं जो यूके, लंदन, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं भाई, इतनी कैलकुलेशन वो भी नहीं करते जल्दी जितनी मैं अपनी कच्ची पेंसिल और इसमें कर लेता हूँ कि आज भाव, आज कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा बेचना है। तो ये कैलकुलेशन है भाई, खाली वो जज्बातियत नहीं है, मैथमेटिक्स है। और वो मैथमेटिक्स उंगलियों पे उनके जो बड़े लोग होते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट है करीम डैडी, उसने कोई PhD नहीं की हुई फाइनेंस अकाउंट्स में। और वो जितने भी 25-30 उसके जो 5-5, 3-3 लाख के एम्प्लॉइज हैं, वो बेचारे कैलकुलेशन इतनी जल्दी नहीं कर सकते और डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते जितना एक आम बंदा कर लेता है पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर। तो वही हेड्स ऑफ टू द पाकिस्तानी सीईओ जो के, और यही उम्मीद है आगे जो कोविड के पोस्ट कोविड आना है, ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संभाला देना। गवर्नमेंट से आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें। थैंक यू। अबाउट टू यू। अच्छा इजाज भाई, वेरी वेरी रिलेटेड क्वेश्चन, आपने लास्ट बात में उसको टच दे दिया। मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ, हैविंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस विद ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉर्पोरेट कल्चर में, और उसके बाद सेपरेटली इदारों को एस्टैब्लिश करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि पाकिस्तान में बिजनेस करना यकीनन आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल सेट, बाउंस बैक एबिलिटी, डिसअपॉइंट ना होना, ये बहुत सारी चीजें तो इसमें मौजूद हैं। एक बड़ा जुमला है, मैंने वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड, यानी कि जब टफ सूरत हाल हो तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। ये बाउंस बैक कैसे किया जाए? बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में बाउंस बैक करना। नए सीईओज हैं, आपकी बातें सुनते हैं, जो नए नए यंगस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन से ला रहे अपनी बता रहे हैं, इस प्रोसेस से गुजरे हैं, इस जुमले को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये लाइफ गिव्स यू लेमन्स, हाउ टू मेक अ लेमनेड। इसके ऊपर मैं एक शेर बोलता हूँ आपके लिए। ये जब मैंने पाकिस्तान का ये प्रोफेशनल सिविल सर्विस जो जिसे हम मुकाबले का इम्तिहान कंपटीशन का एग्जाम कहते हैं, तो ये जब मैंने ये पास किया तो हमारा एक ऐसे राइटिंग का एक पेपर होता था, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो मेरे को पेपर में कोई शेर लिखा हुआ, तो उसके ऊपर मैंने पूरा ये 100 मार्क्स का ये ऐसे लिखना था। तो ये आपके सवाल का जवाब है, ये शेर जो है कि हंसता खेलता चला जाता हूँ मौजे हवादस में। क्या बोला जी? हंसता खेलता चला जाता हूँ मौजे हवादस में, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। कि जिंदगी में जो लोग होते हैं, टफ लोग होते हैं, गोइंग गेट टफ द टफेस्ट कैन गो। तो भाई आप याद रखिएगा बात कि जिंदगी जो है, इकबाल का भी एक शेर मैं सुनाता हूँ, क्योंकि आपने कहा था एजाज भाई आपने कुछ, क्योंकि ये शेर के अंदर ये जो सवाल इतना बड़ा है कि उसमें अंदर समझ जाएगा। वो कहते हैं कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, आई रिपीट, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से है तलखी हयात, अंग भी कहते हैं शहद को फारसी में, और सख्ती कहते हैं कि इकबाल कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप जितने मर्जी, जिंदगी में जो सख्तियां होती हैं, अगर आप जिंदगी में टफ हो जाएं
जिंदगी का मुकाबला आंखों में आंखें डाल के करें तो जिंदगी शहद बन जाती है। तो भाई असल में जो आपका आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, असल में भाई बात यह है कि जो नई नस्ल है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से नए नए पढ़ के आए हैं, एक हमारी जनरेशन, हम तो थोड़ा सा जरा आगे आ गए हैं। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं दानियाल, वो बहुत फिजिकली और बहुत वीक है, मेंटली बहुत वीक है। मैंने बताया ना, मेंटली टफ नहीं है वो, क्योंकि उनके लिए जो लेमन से लेमोनाइड बनाना बहुत मुश्किल है। यू आर राइट, क्योंकि हमने रोटी खा के जवान हुए थे, ये बर्गर खा के बड़े हैं, ये शवारमे खा के बड़े हैं। मैंने इस नई नस्ल का नाम सी जनरेशन रखा हुआ है, इसको कहते हैं जिंगर बर्गर जनरेशन। ये बेचारी धूप के अंदर आधा घंटा नहीं चल सकती। ये मुझे ये बताएं, मैंने आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि विनिंग जो होती है एज कहाँ से आता है, कोई कामयाब ज्यादा हो जाता है, कोई कम होता है, कोई नहीं होता, क्यों? उसकी वजह भाई ये है स्टेमिना। हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल स्टेमिना खत्म हो गया है हमारे पास। वो आपको पता है कि अगर मैं किसी नए बच्चे को कहूंगा ये 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आ, खुदा की कसम 500 मीटर के बाद गिर जाएगा वो। फिजिकल स्टेमिना ही नहीं है, मेंटल स्टेमिना ही नहीं है कि मेंटल टफ 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 टाइम को देखें। तो भाई अपना फिजिकल, मेंटल, और तीसरी एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? आप लेमन से लेमनेड बनाना चाहते हैं? कहते हैं हाँ। मैं सिर्फ उसे सवाल पूछता हूँ, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो जवाब मिलता है जी मैं 12 बजे उठता हूँ। मैंने कहा जी देखो, तुम्हारे नसीब सोए हुए हैं जो अपने बिस्तर से मुकाबला करके सुबह अर्ली नहीं उठ जाता। दुनिया में रिसर्च है, जितने भी बड़े जो अचीवर्स होते हैं वो अर्ली राइजर होते हैं भाई। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो जल्दी काम करते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ तो लोगों के पास स्टेमिना ही नहीं है फिजिकल और मेंटल। लीडरशिप की अगर आप बात करेंगे तो बाकी बातें विजन की कहानियों पे नहीं मैं चाहता, ये सब कागजी और किताबी बातें हैं। असल चीज है फिजिकल, मेंटल स्टेमिना, डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत कीमती चीज है। कायदे आजम जब ऑफिस में आते थे, आपको पता है कि लोग अपनी घड़ियां, अगर 9 बजे सुबह का टाइम है तो लोग घड़ियां अपनी सीधी कर लेते थे कि कायदे आजम जो होता है, घड़ी खराब हो सकती है, कायदे आजम लेट नहीं हो सकता। ऐसे लोग बहुत लाउजी हैं, लोग बहुत ईजी हैं। आप याद रखिएगा, इस मुल्क का सबसे बड़े 2 बीमारियां हैं। जब तक अगर आप लेमन से लेमनेड बनाना चाहते हैं तो उन 2 बीमारियों से ओवरकम करना पड़ेगा। सबसे पहली क्या है जी? हडरामी और सुस्ती। और दूसरी क्या है? मस्ती। ये मस्ती और सुस्ती को जब तक नहीं ओवरकम करेंगे, लेमन लेमन ही रहेगा, लेमनेड नहीं बनेगा। थैंक यू। ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें, वो यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, मैं लिसनर्स को भी बताता चलूं कि दे शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के किताबों में जो मैनेजमेंट और सक्सेस की स्टोरीज आप पढ़ते हैं, या टोनी रॉबिन्स, ब्रेंडन बूचार्ड या और लोगों के आप लेक्चर सुनते हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज को, ऑन ग्राउंड सक्सेस स्टोरीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एक किताब मौजूद है, इत्तेफाक से आई एम नॉट डूइंग दिस टॉक विद इन माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में एक किताब मौजूद है और वो बड़ी जबरदस्त किताब है, एंड दैट इज टॉप 100 CEOs ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त उसका कवर है और उसके जो लिखने वाले हैं वो एजाज निसार साहब हैं। एजाज भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किताब क्यों लिखी, इस सक्सेस स्टोरी को क्यों इकट्ठा किया। और मेरा एक सवाल है कि देखें, आई हायर पीपल इन माय टीम राइट नाउ, मैं अपनी टीम में भी लोगों को हायर करता हूँ। मुझे ये ऐसा लगता है कि ये सक्सेस स्टोरीज पढ़ानी चाहिए कि ये पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर आप कोई किसी यंगस्टर से पूछेंगे जी बिजनेसमैन के नाम बताओ, तो वो हार्डली भी उन्हें कुछ पता होगा कि कौन से बिजनेसमैन है। ये किताब कैसे पढ़ी जाए, कहाँ पढ़ी जाए, कहाँ से हासिल की जाए, और इसका मकसद क्या था, व्हाट वाज द स्टोरी, द होल थिंग बिहाइंड इट, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। अगेन बड़े आपने अच्छी बात की है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि ये काम है IBA जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं वहीं से मैंने भी ग्रेजुएशन किया। मैंने वहाँ 12 साल वहाँ MBA को पढ़ाया। जब मैं वहाँ MBA को पढ़ाता था, जब मैं खुद भी पढ़ता था, तो मैं उस्तादों के साथ एक लड़ता था कि सर आप हमें क्या कहते हैं कि आप हमें एक बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की कहानियां बताते हैं, आप हमें पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की, CEOs की कहानी क्यों, बिजनेस लीडर्स की कोई स्टोरी क्यों नहीं शेयर करते? तो वो कहते थे कि ये लिखी नहीं गई। तो मैंने कहा यार ये क्या मसला है कि आप हमें बाहर के लोगों की कहानियां बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, केस स्टडीज बताते हैं, जो कि पाकिस्तान में रेलिवेंट ही नहीं है। मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन लर्निंग कैसे करेंगे?
मैं मार्केटिंग अपनी मुल्क में करनी है, बाहर के मुल्क की मार्केटिंग की किताबें पढ़ के मैं पाकिस्तान में मार्केटिंग नहीं कर सकता। थियोरेटिकली तो मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, वो सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइडें दिखा के चले जाते थे कि जी कॉटलर ने ये कहा, फलान एंथनी ने ये कहा, फलान ये कहा, स्मिथ ने ये कहा। और मैंने कहा मुझे कॉटलर और एंथनी स्मिथ को आग लगानी है, मुझे पाकिस्तानी को बताएं। तो खुदा की कसम टीचरों के पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरे पास एक बड़ा एंगर था, गुस्सा था यार पाकिस्तानी जो मैंने भी गूगल करता देखता मियां मंशा, बाबर अली, रजाक दाऊद, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, हाजी बशीर, जो हमारे जो सतारा वाले, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यार। आज भी बदकिस्मती से आप गूगल करके देख लें, किसी की भी आपको सक्सेस स्टोरीज इन अ प्रोफेशनली डॉक्यूमेंटेड रिटर्न वे में आपको नहीं मिलेगी यार। कंटेंट जो है इतना बड़ा कहते हैं, कोई लिखा जाएगा तो अपलोड होगा तो डाउनलोड होगा ना यार। आपको पता है मैंने बाबर अली और रजाक दो की पहली दफा मैंने कहानी लिखी, अभी लम्स की वेबसाइट पे जाएं, उनके ऊपर मेरी कहानी पड़ी हुई है। उन्होंने प्राइड लिया हुआ है कि इजाज अंसार ने सीओ 100 सीओ जो 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 बुक है उसमें दोनों को हमने लिखे। बाद में सैयद बाबर अली की किताब अभी को 2 साल पहले आई है लेसन्स लर्न के नाम से, तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है। उससे पहले इजाज अंसार ने लिखी थी। तो इतने बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज नहीं है, तो आम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी स्टोरीज कौन लिखेगा भाई? तो केस स्टडीज के तौर पे अगर लिखी नहीं जाएंगी, मैं आपको अब आपकी अगली बात का जवाब देता हूँ, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा कि यूनिवर्सिटीज में इस वक्त पाकिस्तान की 20 यूनिवर्सिटीज में आपके भाई की किताब सिलेबस के एज अ कॉम्प्लीमेंट्री किताब, सप्लीमेंट्री किताब के तौर पे पढ़ाई जाती है। और उसमें से एक मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपकी पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी जिसको हम फास्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप वहाँ डीन है वहाँ की मैनेजमेंट साइंसेज की, डॉक्टर सादिया। एक डॉक्टर था सादिया ने आज से 4 साल 5 साल पहले मुझे फोन किया और मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द लेडी। उसने कहा इजाज मुझे आपसे कुछ किताबें चाहिए अंडर सीईओ की। मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी कि मेरे को 50 किताबें चाहिए, मेरे पास इस वक्त एमबीए के फाइनल के 50 स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनको कहा है कि ड्यूटी लगाई है कि आप वो किताबें खरीदें और मैनेजमेंट हाउस से या सीईओ क्लब से, और हर जो टॉप सीईओ की एक एक स्टोरी को आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं और मुझे वो प्रेजेंटेशन दें। और मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि जाज आप कभी इस्लामाबाद आओ तो आप मेरी यूनिवर्सिटीज को रियल लाइफ टाइम स्टोरीज बताओ कि पाकिस्तान में ये स्टोरीज हैं, ये मैनेजमेंट के ये स्टूडेंट्स हैं, अगर ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की केस स्टडीज नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे ऑन करेंगे? जब कल को ये 10 साल बाद खुद बड़े सीईओ बनेंगे तो इनकी भी सक्सेस स्टोरी लिखी जाएगी। तो ये एक बिल्कुल इतना प्राइड और इतना हुआ कि अभी रिसेंटली आपने बोला लंदन में, मेरे लिए जब सबसे बड़ा प्राइड ये था कि अभी आज से कुछ 3 महीने पहले कोविड से पहले की बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़ा जो हॉल है उनका जो क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल, वहां आपके भाई की अभी किताब, वहां के साइड बिजनेस स्कूल का जो डीन था और उनका जो प्रोफेसर था वहाँ पाकिस्तानी जो है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता है, उसका नाम है डॉक्टर यासर, और उनका जो एंड्रयू जो उनका जो डीन है, दे वर देयर यार। उन्होंने मेरी किताब 100 सीईओ की ऑक्सफोर्ड यूनियन क्लब के अंदर लॉन्च की यार। दैट वाज द प्राइड कि पाकिस्तानी हम चाह रहे हैं कि सीईओ को बाहर लेके जाएं, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है पाकिस्तानी। हम जैसे यहाँ चावलों को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेदर और ये टेक्सटाइल, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सीईओ को एक्सपोर्ट किया जाए पाकिस्तान से। दैट इज अ ब्रांडिंग ऑफ द सीईओ टू द ग्लोबल। सक्सेस स्टोरीज को आगे लाया जाए। So it's a wonderful book and मैं तकरीबन सारी स्टोरी से गुजरा हूँ। Such an inspiration every story is, और उस स्टोरी को लिखना, उसको इस अंदाज में लेकर आना, that's a wonderful story। मैं बात फिर रिट्रेट करूँ, वो लोग जो सुन रहे हैं, I've been to management house और मैं बड़ी सच्ची और खरी बातें करता हूँ कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज को जब आप देखते हैं तो ट्रेनर्स को देखते हैं तो ये किसी होटल में चले जाना, एक ट्रेनिंग करा लेना, अच्छा बोलने की आर्ट अल्लाह ताला नवाज देता है, लेकिन एक ऐसा इदारा चलाना जो उस ट्रेनिंग के गिर्द रिवॉल्व करता हो और उस इदारे में जिसमें आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, वहां जाके आपको पता लगे, तो दैट इज व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ मैनेजमेंट हाउस एंड द वे इट इज बीन रन। तो वो तमाम लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इजाज भाई, मुझे जरा एक बात क्लियर करें, आजकल बड़ा एक लफ्ज बोला जाता है जी, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर। बड़ा जरूरी है कि कुछ लोग ये भी समझ लें कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर के लिए बनने के लिए नहीं है, हर बंदा नहीं होता, कुछ सक्सेसफुल एम्प्लॉयज भी होते हैं। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के? यार अगेन मैं कुछ बड़े रिपीट करूंगा, कुछ है उसमें। सबसे बड़ा जो सीक्रेट एंटरप्रेन्योर्स का ना, सबसे बड़ी बात जो ना हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है,
जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया। जस्ट लाइट ऑफ नोट कि भाई बात देखें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, ये आपकी बड़ों की दुआएं हैं, आपके ऊपर बुजुर्गों का साया है, आपके हाथ है। ये जो आपको इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो ना जो सबसे बड़ी चीज होती है जो एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्रेन्योर बनाती है, वो आपको मैं वो बात बताऊंगा जो रिसर्च बेस्ड है। मैंने 14 साल एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट IBA पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और एक वन वर्ड उनके पास उनकी जो डिजायर ऑफ फ्रीडम जो है ना वो बहुत हाई होती है। जो जॉब वाला PhD वाला सोच भी नहीं सकता, वो नौकरी कर लेगा, जी सर करेगा। एंटरप्रेन्योर के पास जी जरूरी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो जो एंटरप्रेन्योर को डिफरेंशिएट करती है, उसकी डिजायर टू सक्सीड है, उसकी डिजायर टू गेट फ्रीडम है। वो अपना बॉस, हिज ओन बॉस, वो अपना क्रिएटर होता है। वो एक अपनी वो अपना क्या कहता है, चीजों को आइडियलाइज करता है, वो अपने ख्वाब देखता है और ख्वाबों को जो होता है वो अपना कागज पे लिखता है, उसके अंदर रोशनी और रंग भरता है, उसके बाद उसको डेवलप करता है और उसके बाद डिलीवर करता है। तो ये चार चीजें आ गई, पहले वो ड्रीम, उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ द ड्रीम, उसके बाद डेवलपिंग द ड्रीम और डिलीवरिंग द ड्रीम टू द वर्ल्ड। कि ये लो भाई, ये मेरे मोबाइल था, ये स्टीव जॉब्स का ड्रीम था, उसने ये अपना अपना एप्पल की सूरत में आपको दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने माइक्रोसॉफ्ट दे दिया, KFC ने कर्नल स्टैंडर्ड ने KFC दे दिया, सोनी वाले ने सोनी दे दिया। दुनिया के हर बड़े ब्रांड जो बने हैं वो उन्होंने जो ड्रीम से लेकर डिलीवर तक दिया। जैक मा और जो लेटेस्ट एग्जांपल है हमारी, उसने ड्रीम देखा। आज पूरी दुनिया जो है अमेजोन, आज सारी दुनिया में डी हायरिंग हो रही है, लोग निकाले जा रहे हैं, और अलीबाबा और अमेजोन में हायरिंग हो रही है। इस वक्त लाख लाख बंदा नया उन्होंने हायर किया है। क्या जी कि वो डिलीवर कर रहे हैं भाई। अगर आपने अपना ख्वाब रखा और अपनी डिलीवर नहीं किया, आपको एक मजे की बात बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वो नालायक लोग नहीं होते। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटेंस का मतलब होता है इट इज अ कंपल्शन टू कंप्लीट एन एक्शन। यानी कि बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे दानिया, जो बड़े बड़े ख्वाब आपके टेबल पे बैठ के चाय के कप के ऊपर शेयर करते हैं, लेकिन बाहर जाकर धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुश्किल जब फेंटी पड़ती है भाग जाते हैं, उनके ख्वाब तितर बितर हो जाते हैं। और जो बड़ा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ख्वाबों को ताबीर करता है, यानी कि उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना और उसको एंड तक लेके जाना, सर दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोजेक्ट शुरू करना और एंड तक लेके ना जाना, वो एंटरप्रेन्योर होता ही नहीं है, वो भाग जाता है बीच में ही। इसलिए आपको देखा होगा 10 में से 9 लोग भाग जाते हैं पहले 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर्स। ये रिसर्च कहती है कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना पहले 2 ईयर्स में 80 to 90% होता है। तो लोग आते हैं और 2 साल के बाद फेंटी करके खा के वो तोड़ जाते हैं। जो बंदा स्टे करता है, जो बाउंस बैक करता है, जिसके अंदर फेंटी खाने की सलाहियत ज्यादा होती है, जो ये पेन प्रोसेस है, जो ज्यादा पेन बर्दाश्त कर सकता है वही पाकिस्तान में आगे जाता है। और हर जो स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर है 2 लफ्जों में बयान करता हूँ, ये पेन और प्राइड की स्टोरी है। हर कामयाब एंटरप्रेन्योर की स्टोरी 2 लफ्जों की है। ये उसके पीछे पूरी पेन की स्टोरी है और प्राइड है कि हर जो सक्सेसफुल होता है ही हैज अ प्राइड, ही इज अ कॉन्फिडेंस, एंड फर्स्ट क्या है, ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। जैसे लेबर पेन होती है, इसी तरह ये भी पेन प्रोसेस है। क्रिएशन इज अ पेन प्रोसेस। तो कोई भी चीज जो क्रिएट बगैर पेन के नहीं हो सकती। सही। अच्छा सर, जास भाई मैं साथ साथ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन ऑफ द सेशन। एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है अमन खान की तरफ से, वेयर डू यू सी मैनेजमेंट हाउस इन कमिंग 5 years? अगले 5 सालों में कहाँ लेंगे? मैं लोगों के भी अब क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहा हूँ जी। अगले 5 साल इसके 2 स्टेप्स हैं, इसके दो चीजें हैं। अभी मैनेजमेंट हाउस जो है ना, अभी रमजान के बाद, ईद के बाद आपको भी मैं इनवाइट करूंगा, आप भी उसका बोर्ड का मेंबर बने। हमें क्या करने जा रहे हैं, 2 तरह से हम मैनेजमेंट हाउस को प्योरली लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल बनाने जा रहे हैं। आई रिपीट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप का इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं कि हमने वो बच्चे जो अभी यूनिवर्सिटियों से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, जिनको अब आगे ना पढ़ाई की जरूरत है, डिग्रियां जो अब जो आजकल की जो डिग्री का जमाना अब आउटडेटेड, अब आपको डिग्री नहीं चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, स्किल्स चाहिए। ठीक है जी। तो हमने उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेश है और रॉ हैंड है, और दूसरे हैं जो जॉबलेस हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स थे, जिनकी अच्छी अच्छी जॉब चली गई हैं, जो लाख 2-2 लाख 5-5 लाख ले रहे थे। अब हमने उन दोनों कैटेगरीज को अलग-अलग असेसमेंट करके हम मैनेजमेंट हाउस में लेके आ रहे हैं, और अगले 3 से 6 महीने में
हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप उन पढ़ाएंगे, सीईओ जो एक्चुअल होंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाएंगे, और फिर हम उनको सीड मनी देंगे, चाहे अखुवत के जरिए, चाहे वो हम फिनका बैंक या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, और अगले 6 महीने से 1 साल के टाइम पे हम उनको अपने 100 बच्चों को, ये 100 लोगों को मिलियनेयर बनाएंगे, और हर बंदा मिनिमम भी कम से कम 50 से लेकर 500 जॉब्स क्रिएट करेगा। तो मैनेजमेंट हाउस का जो नेक्स्ट 5 इयर्स का जो प्लान है कि हम अगले 5 सालों में 100 मिलियनेयर और उससे अगले 5 सालों में 100 बिलियनियर प्रोड्यूस करें, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो है ना मैनेजमेंट हाउस का नंबर 1 गोल है। अगर वेल्थ क्रिएट करेंगे तो जॉब्स भी आएंगी, बिजनेस भी आएगा, मुल्क में रोटी भी चलेगी, और सरकार से कोई एक्सपेक्ट ना करें। दैट इज माय विजन। राइट, क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन। ताहिर नईम साहब सुन रहे हैं आपको, एंड ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट हैबिट्स मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। वो ये पूछना चाह रहे हैं, इफ अ पर्सन इज इन 40s हाउ कैन ही चेंज हिज हैबिट। क्या कोई उम्र भी होती है बदलने की, या कोई उम्र नहीं होती? थोड़ा सा रोशनी डाल दें, क्वेश्चन है उनका। 40s के बाद तब्दील हो सकता है इंसान। ये देखें, ये बंदे को ना याद रखिएगा, इंसान नहीं बदलता, पहली बात, ह्यूमन डज नॉट चेंज। याद रखिएगा, इंसान को जो चीज बदलती है ये वो या तो वो हादसा है, वो लाइफ में कोई ट्रेजेडी है, या कोई पेन है। अगर आपको जो ट्रेजेडी का वेट ना करें तो अपनी पेन बढ़ा लें। आप अपने ऊपर एक ऐसा टीचर, अपना खुद मेंटोर बने, सेल्फ मेंटोरिंग करें। अगर आप सुबह 5 बजे या अगर आपने टाइम लगाया या कोई हैबिट चेंज करना चाहें, अगर आप नहीं करते तो पेन एंड प्लेयर्स, याद रखिएगा, जिंदगी में जो इंसान को चीजें चेंज करती है, जो चीज आप चेंज करना चाहते हैं उसके साथ मैसिव पेन लगा दें या मैसिव प्लेजर लगा दें, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर माइल्ड पेन माइल्ड प्लेजर रखेंगे तो चेंज नहीं आएगी 40 साल के बाद, और बड़ी मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आप 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करते, आप 10 के बजाय आप 50 पुशअप्स निकालें, और अगले दिन 60 निकालें, 70 पुशअप निकालें। ये सेल्फ पेन इन्फ्लिक्ट करें और अपनी बॉडी को पनिश करें। याद रखिएगा, हैबिट चेंज करने का एक ही फॉर्मूला है, पनिश योर बॉडी। आपकी बॉडी और आपका माइंड शुड बी द मास्टर एंड बॉडी शुड बी द सर्वेंट। हमारा क्या है, इसलिए चेंज नहीं आती कि हमारी बॉडी हमारा क्या है, मास्टर है, और हमारा माइंड क्या है, वो सर्वेंट है। वंडरफुल कांसेप्ट। इजाज भाई, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट 4-5 मिनट्स बिफोर आई कंक्लूड, ये कोविड-19 के बाद आप बिजनेस वर्ल्ड को कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी द बिजनेस वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आपका क्या ख्याल है और सेंटिमेंट्स क्या हैं? आप सीईओ से मिलते होंगे, डिस्कशंस होती होंगी। यार ये एक लॉ ऑफ नेचर है। आपने स्कूल में चौथी जमात मेरा ख्याल आपने पढ़ के इधर आए होंगे, मैं तो मैट्रिक भी नहीं पूछ रहा, उसमें एक चीज पढ़ी थी कॉन्सेप्ट कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मैं रियलिटी की बात करूंगा, क्या बोला जी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और दूसरा बात क्या है, सर्वाइवल ऑफ द, डार्विन ने क्या था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये भी हम भी एक क्रिएचर है, होमोसेपियंस है, स्ट्रगल होनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब मैंने चेंज कर दिया है, वो पुराना हो गया। अब सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट होगा, और सर्वाइवल ऑफ द इनोवेशन होगा, और सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट होगा। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास दिमाग है, और जो फास्ट है, बस वही सर्वाइव करेगा, बाकी इस तूफान में बह जाएंगे। राइट, आई होप दैट गोज राइट। एजाज भाई, बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे हैं वॉल्व के प्लेटफॉर्म से जो मैनेजमेंट हाउस से आज वाकिफ हुए हैं, उनकी वाकफियत मिली है। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो मैनेजमेंट हाउस का हिस्सा बनना चाहते हैं या वहाँ आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, किस किस्म के प्रोग्राम सभी यंगस्टर्स के लिए मौजूद हैं, एंड हाउ दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम मैनेजमेंट हाउस? अभी ईद आ रही है, ईद के बाद किस किस्म के प्रोग्राम्स हैं? देखें, मेरी अगेन ये है कि पहले आपने थैंक्स आपने मैनेजमेंट हाउस की बात की, जिक्र किया सीईओ क्लब का। हमारा एक मैगजीन भी है सीईओ टुडे के नाम से, वो भी हम पब्लिश करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को। तो ईद के बाद मैनेजमेंट हाउस हमारा अभी भी खुल रहा है। किसी ने मैनेजमेंट हाउस का पेज लाइक करें, आपको मैनेजमेंट हाउस लिखें, हमारी वेबसाइट है, और इजाज निसार चेक कर लें, आपको डेली एजेंडा मिलेगा। डेली हमारी एक्टिविटी होती है, 365 दिन होते हैं, और सिर्फ संडेज को शायद हम ब्रेक लगाते हैं। हमारे एक साल में 300 सेशंस होते हैं, यानी कि 365 दिनों में 65 माइनस कर दें डेज, और 300 सेशन है। ये हमारी पहली बात, लर्निंग सेशंस, चाहे वो सीईओ की टॉक्स हो, चाहे ट्रेनिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो। हम अपने जो भी WHO के SOPs के साथ हम इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद ईद पे मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो रहे हैं, और उसमें ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे, तमाम सोशल डिस्टेंस तमाम SOPs के साथ होंगे। सबको मैं इनवाइट करता हूँ, जो फ्राइडे सैटरडे का दिन होता है हमारे फ्री सेशंस होते हैं, आप आएँ देखें, पहले वेबसाइट पे देखें, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे आप लर्न करें, और उसके बाद उसका हिस्सा बने। और आखिरी बात,
जो बहुत बड़ी करने जा रहे हैं ट्रेनिंग्स के। अब ट्रेनिंग्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल मैं लेके आ रहा हूँ, वेल्थ क्रिएशन का, अगर किसी की जॉब चली गई है, अगर किसी का कोई स्ट्रेस है, अगर किसी का कोई एंग्जाइटी है, तो खुदा के लिए मैनेजमेंट हाउस आ जाएं। ये दाता दरबार है उन लोगों का जो जॉबलेस हैं, जो सीखने हैं, जो जो पैसे हैं, ये दाता दरबार पे आए। इनको लंगर भी मिलेगा, इनको सुकून भी मिलेगा, इनको तरबियत भी मिलेगी, इनको उम्मीद भी मिलेगी, और ये यकीन जानिए नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे जो अपनी दुनिया आप पैदा कर का जो मेन मैनेजमेंट हाउस का कंसेप्ट है, अपनी दुनिया आप पैदा कर, घर जिंदों में है, सिरे आदम है, जमीरे कुन, फुका है जिंदगी, और जिंदगानी की हकीकत को हकन के दिल से पूछ, जुए शेरा तेशव संगे गिरा है जिंदगी। यानी कि हम उनको जिंदगी को सिखाएंगे कि भाई पैसे कमाना मकसद नहीं है, दूसरों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट लेके आना एट मैस लेवल वो इंपॉर्टेंट है। उसमें रिजक का वादा खुदा ने किया है, मेहनत का वादा मेरा है। और इशफाक साहब की जो दुआ है कि अल्लाह ताला मैनेजमेंट हाउस का यही विजन है कि अल्लाह हमें आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। तो मैनेजमेंट हाउस के अगले 5 साल हमने आसानियां इकट्ठी करनी है और आसानियां इन हजारों लाखों लोगों में बांटनी है। सही। एजाज भाई, वंडरफुल टॉक्स। क्वेश्चंस हमारे पास बड़े जबरदस्त आए हुए थे, नाजिया ने भी, शफक ने भी, उसके अलावा अमन एंड वी हैड ताहिर एंड मेनी अदर्स एज वेल। मैं कंक्लूजन जो है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि शेर आप सुनाएंगे आपको जबरदस्त से हमें। मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन जो है वो आपके कोई 3 ऐसे अशार जो आज आपने पिक किए हो यंगस्टर्स के लिए, जिसमें कोई मैसेज मौजूद हो, जरा उस पे कंक्लूड करें ताकि हम तक कुछ बातें याद रहें। आपने बड़े शेर सुनाई भी हैं, लेकिन 3 नहीं तो चलें 2 या 1, जो भी आप समझें। कोई शेर से मैं इख्तिताम करना चाहूंगा। यार एक शेर तो बहादुर शाह जफर का है। ये जो टाइम है ना, क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने अंदर झांकें, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें। और उसके लिए बहादुर शाह जफर का एक शेर है, आज का क्लोजिंग जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कि नाती हाल की जब अपने खबर, देखते रहे औरों के ऐबो हुनर। आई रिपीट, नाती हाल की जब अपने खबर, देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपनी खामियों पे नजर, तो इस जहां में कोई बुरा ना लगा। अरे भाई जिंदगी में अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा, आपके अंदर जो खूबियां खामी, हमने कोविड से पहले का इंसान और हैं। अब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, बीसी एंड क्या एसी। बीसी का मतलब बिफोर कोरोना और एसी का मतलब है आफ्टर कोरोना। अब हमारी टोटल एक हिस्ट्री चेंज हो गई है, सोशल हमारा जो बिहेवियर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नया बन गया है। अब अगर आपने चेंज नहीं किया, अपनी हैबिट्स को नहीं बदला, नई रियलिटी के साथ जस्ट नहीं किया, तो इंसान आपको अल्लाह या आपकी जगह नए बेस्ट लोगों को रिप्लेस कर देगा और तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। दास्तानों में। वंडरफुल एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इवॉल्व टॉक टुडे, और इंशाल्लाह हमारी आपसे डिस्कशन जारी रहेंगी। एवरीवन थॉरोली लाइक द सेशन, और एक सक्सेस स्टोरी है, रियल टाइम सक्सेस स्टोरी है। फेसबुक स्क्रॉल करें तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको नजर आती हैं कि जिनको देख के अच्छी खुशी भी होती है, लेकिन रियलिटीज ट्रेनर्स को पता होती हैं। लेकिन एजाज भाई इज अ वंडरफुल ट्रू स्टोरी। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब फॉर योर थैंक यू, टाइम आपका टुडे एज बहुत वेल। शुक्रिया। अपना ख्याल करिए, और रमजान के बाद, ईद पे बाद आपने भी आना है, और हम एक स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बनाने जा रहे हैं। इस पूरी जो बेरोजगार हुए हैं लोग, इस पूरे सारे इस एपिसोड ऑफ कोविड में, हम उनको उम्मीद बनेंगे, उनको हम पैसे देंगे, उनको हम सिखाएंगे और एक नई जहां बसाएंगे एंटरप्रेन्योर्स का। एक एंटरप्रेन्योर भी हमने बना दिया, वो 100 जॉब्स क्रिएट कर देगा हजूर। यकीन जानिए, खाली मोटिवेशनल टॉक और सेशन से भी कुछ नहीं होता, पेट नहीं भरता भाई। तबलीग इशफाक साहब कहा करते थे, उसको उस वक्त करो जब अगले के पेट में रोटी है। तो हमने एक एंटरप्रेन्योर, एक 100 एंटरप्रेन्योर्स अगले 6 महीने में टारगेट है मेरा, इसमें आप हिस्सा बने, हम पाकिस्तानियों को आगे लेके चलें, रोजगार के मौके क्रिएट करें। अगेन सरकार से उम्मीद ना रखें, अपनी दुनिया आप पैदा कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट जी, दैट वाज इजाज नार साहब। बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, और मैंने जैसे कुछ बातें दबे लफ्जों में की जरूरत भी थी ऑन अ बिगर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सक्सेस स्टोरीज, ट्रू सक्सेस स्टोरीज रियलिटी होती हैं। दिल मुयस्सर और मौजूद से बहलता नहीं, कुछ तो हो जो मेरी 10 तरह से बाहर हो, और उस 10 तरह से बाहर को हासिल करने का नाम ही शायद कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु जॉइन्ड इन टुडेस इवॉल्व सेशन। विल बी बैक विद मोर सेशंस टुमारो। We are having 3 sessions. In fact, me and my team would be doing tomorrow on Sunday. So thank you very much, everybody who joined in. Do drop in your comments for further discussions.